Hello everyone, this is Devil and welcome back to my YouTube channel. Today I gonna teach you the tense analysis with perfect examples. Learning tense is very essential for the students, not only for improving the grammatical skills or improving the writing skills, but also to improve the spoken and communicative English. So in this class I am trying my level best to solve your tense issue. But a small request, if you are new to my channel, then kindly like it, subscribe it, share it and comment it, which will be a motivational factor for me to create these videos for you. So let's begin. In English, the tense is divided into two parts. One is present and one is past. Future is time, not a tense. But the most important thing is that here each tense is further subdivided into four aspects. These aspects are simple, progressive, perfect and perfect progressive. That means we have four aspects of present, four aspects of past and four aspects of future. That means completely we have 12 aspects. But before going to that, let me tell you the subject. What do you mean by subject? Subject is that part of the sentence by which the work is being done. यानी कि सेंटेंस में जिसके द्वारा एक्टिविटी हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स आई, वी, यू, ही, सी, दे, नेम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बोल सकता हूं आई गो टू स्कूल. यहाँ पे एक्टिविटी क्या है? स्कूल जाना. कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं. मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई. यू आर प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है? फुटबॉल खेलना. कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, यानी कि तुम. मैं क्यों बोल रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में इतना कुछ? क्योंकि आगे चलकर हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें सब्जेक्ट का रोल इंपॉर्टेंट होगा. तो अच्छे से याद रखना, एक सेंटेंस हो गया और सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है, जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे. तो आई, वी, यू, ही, सी, दे, नेम, these are the subjects here. Okay, now go to the structure. Number one, present simple. Here the structure is subject plus main verb. तो हम subject को लाएंगे, उसमें verb को add कर देंगे. तो I go, I हो गया subject, go हो गया verb. We play, we हो गया subject, verb हो गया play. So I go to school, we play football. यहाँ पे एक बात आप अच्छे से सुनना. अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी और नेम, याद रखना अच्छे से. ही, सी और नेम, कोई भी नेम होगा तो जो आपका मेन वर्ब होगा उसमें एस और ईएस लगेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आई गो टू स्कूल. तो आई के पास मैं गो लिखा, अगर मैं ही लिखूंगा तो गो टू कन्वर्ट हो जाएगा गोज. आई गो टू स्कूल, he goes to school, क्योंकि he third person singular number है. He, she, name. Okay. Now we will go to the present progressive. The structure is very simple. Subject plus is, am, are plus main verb ing. हम पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, उसमें is, am और are इन तीनों में से किसी एक को लगाएंगे, प्लस जो मेन वर्ब होगा उसमें ing ऐड करेंगे. तो क्या हो सकता है? I am going to school. He is playing football. They are doing the homework. ये हो गया आपका present progressive. Now we go to the present perfect. इसमें क्या होगा? We have to say like this. Subject plus have has plus V3. पहले हम subject को लाएंगे, उसमें have और has दोनों में से किसी एक को रखेंगे, प्लस जो verb होगा उसका नंबर 3 फॉर्म यानी कि past participle form, just like go, went, gone, V3 is gone, do, did, done, V3 is the done. तो क्या होगा? Subject have as V3. I have gone to school. They have played football. You have done the homework. ये हो गया आपका present perfect. The last one, present perfect progressive. Now here how we will do this? Here
the subject plus have or has plus been plus main verb ing. I have been going, they have been playing, you have been singing. ये हो गया आपका प्रेजेंट. सिमिलरली we will go to past. The past simple structure: subject plus main verbs past form. I went, they played. प्रेजेंट सिंपल में गो हुआ था, याद रखना. प्रेजेंट सिंपल में गो हुआ था. I go to school. इधर क्या हो जाएगा? went हो जाएगा. क्यों? क्योंकि went go का सेकेंड फॉर्म है. तो I went to school. Past progressive subject plus was or were plus main verb ing. I was playing football, they were dancing together, you were eating chicken. So बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट नॉर्मल रहेगा, मेन वर्ब ing भी नॉर्मल रहेगा. सिर्फ इज am are लगेगा प्रेजेंट में, was were लगेगा पास्ट में. ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव. नाउ गो टू द पास्ट परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. याद करना प्रेजेंट में क्या बोला था? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3. यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया. सब्जेक्ट रहेगा सेम, V3 रहेगा सेम, बीच में हैड लगेगा. तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. I had gone to school, they had played football. ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट. द फाइनल वन, सॉरी पास्ट परफेक्ट. द फाइनल वन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ing. I had been going to school, he had been playing a cricket. ये हो गया आपका पास्ट का कंप्लीट एस्पेक्ट. अब एक ही बचा है. दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूचर. फ्यूचर सिंपल. सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस वर्ब. I shall go to school. Then future progressive. Subject shall plus will plus be ing. I shall be playing. Then perfect. Subject will shall have as V3. I shall have gone. The last one. Perfect progressive. Subject will shall have as with ing. I shall have been playing. So these are the complete structures. Now we will go to the use, because without the knowing of the uses of the tense, it is very difficult for us to learn it. So the first use with present simple. We use present simple for habit. यानी कि अगर आपके कुछ भी हैबिट है, हैबिट का मतलब क्या? जो आप बार बार करते हो, हर दिन करते हो, उसको हम हैबिट बोलते हैं. ठीक है. सभी हैबिट में आप प्रेजेंट सिंपल को यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमेशा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मेरा हैबिट है. एवरी डे आई ड्रिंक वार्म वाटर. मैं हमेशा गर्म पानी पीता हूँ, ये मेरा हैबिट है. एवरी डे आई डू वर्कआउट. मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ, ये मेरा हैबिट है. अगर आप बोलोगे हर दिन हम मंदिर जाते हैं, तो ये भी हो गया हैबिट. एवरी डे आई गो टू टेम्पल. तो अगर आपको अपनी हैबिट के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना होगा. नंबर वन. Number two, we use present simple to denote that activity, especially future activity, which has been pre-planned, which has been fixed. ये ट्रेन कब निकलेगा? 6 PM को निकलेगा. तो आप बोल सकते हो द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. मतलब शाम में ट्रेन का निकलना क्या हो गया? फिक्स हो गया. आपका एग्जाम कब शुरू होगा? सर हमारा एग्जाम शायद नेक्स्ट वीक शुरू होगा. तो फिर प्लान हो गया, एग्जाम फिक्स हो गया, टाइम टेबल रेडी हो गया. आप क्या बोल सकते हो? आवर एग्जाम बिगिंस नेक्स्ट वीक. नाउ वी विल गो टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? नंबर वन, we use present progressive for those action which is running, which is continuous, which is not completed. हम उस एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज करेंगे जो हमारा चलता रहता है, जो कंप्लीट नहीं होता, यानी कि जो फिनिश नहीं होता. नाउ मैं एक वीडियो बना रहा हूं,
नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर वॉचिंग द मूवी। यानी कि जो भी एक्टिविटी, जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम अगर कंटिन्यू है यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कोचिंग में हो, 10 बजे आ गए, अभी 10:30 हुआ, 11 को छुट्टी होगा, तो आप क्या बोल सकते हो? वी आर स्टडिंग, बिकॉज आपका काम चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर दोज एक्शन व्हिच टुक प्लेस इन जस्ट इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में अगर कुछ एक्टिविटी आपका करना है तो आपको वहां पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करना होगा। इमीडिएट फ्यूचर मतलब जस्ट इमीडिएट, यानी कि आप बोल सकते हो दैट आई एम गोइंग टू पुरी दिस आफ्टरनून, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। यानी कि जो टुमारो मॉर्निंग या जो आफ्टरनून आया वो जस्ट इमीडिएट है, तो आप इधर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हो। यहाँ पे याद रखना, मैं ऐसा नहीं बोल सकता दैट आई एम गोइंग टू पुरी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इमीडिएट नहीं है, वो डिस्टेंस है। तो आपको सिर्फ इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज करना होगा। आप अभी घर में हो, आपको आफ्टरनून में कटक जाना है, तो आफ्टरनून मॉर्निंग से पास है यानी कि इमीडिएट है, तो आप बोल सकते हो दैट आई एम गोइंग टू पुरी, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू कटक दिस आफ्टरनून। यानी कि आफ्टरनून आपके जो टाइम इंटरवल है ये पास है। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम बोलते तो है प्रेजेंट परफेक्ट, बट ये पास्ट का है। यानी कि जो जो एक्टिविटी आपका इमीडिएट पास्ट में खत्म हुआ उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। इमीडिएट पास्ट मतलब क्या? 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 20 मिनट पहले, अभी आप आफ्टरनून में हो, मॉर्निंग में हो गया। ये जो आपका इमीडिएट पास्ट यानी कि जस्ट थोड़ा वक्त पहले अगर आपका एक्टिविटी खत्म हुआ है, उसे यूज करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकते हो। मैं आपको पूछूंगा हैव यू डन योर लंच? आप बोलोगे यस, आई हैव जस्ट डन माई लंच, आई हैव जस्ट डन माई लंच। आज a teacher I will ask must hey you have you done your homework? Yes sir, I have just done it. मैंने जस्ट अभी किया, यानी कि आपने होमवर्क को कंप्लीट कर दिया, पर कब किया? जस्ट किया। जस्ट फिर भी आपके पास्ट में होगा, तो हमेशा याद रखना अगर आपका कोई भी एक्टिविटी हो और वो एक्टिविटी जस्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि इमीडिएट पास्ट में अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, तो आप वहां प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे। Now there is another use of present perfect. Remember, we use present perfect for those activity we just started recently or immediate past and still it is running. याद रखना, अगर एक्टिविटी रिसेंट और इमीडिएट पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, आप वहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, एक टीचर यानी कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैंने आपको होमवर्क दिया मॉर्निंग में, ठीक है, लंबा बड़ा वाला 10 वाला ऐसे लिखने का होमवर्क दे दिया, मॉर्निंग में दिया 7 बजे, अभी 9 बज रहा है, मैंने आपको 10 ऐसे दिया। मैं पूछूंगा बेटा ऐसे लिख लिया? तुमने क्या बोला? सर 5 तो लिख लिया, यानी कि 5 बाकी है। तो याद रखना यहाँ पे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो मॉर्निंग में दिया था, यानी कि 7 बजे दिया था, अभी 8 बजे है या फिर 9 बजे है, तो इमीडिएट पास्ट में मैंने आपको काम दिया, यानी कि आपका काम कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको 10 ऐसे दिया, आपने 5 लिखा और बाकी 5 आप लिख रहे हो, यानी कि आपका काम शुरू हुआ इमीडिएट पास्ट में और अभी तक चल रहा है। तो आप क्या यूज कर सकते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप बोलोगे सर आई हैव जस्ट डन 5 ऐसे सो फार, अभी तक मैंने 5 ऐसे किया। आई हैव जस्ट डन 5 ऐसे सो फार, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। वी विल गो टू द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। रिमेंबर, we use the present perfect progressive
for those activity which started in past and still running. हम वो एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है. थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया क्योंकि इससे पहले जो परफेक्ट था ना, ये भी ऐसा ही था, दैट इमीडिएट पास्ट से शुरू हुआ और अभी चल रहा है. तो डिफरेंस देखना, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट से शुरू हुआ लेकिन थोड़ा पहले, यानी कि इमीडिएट पास्ट और अभी तक चल रहा है. लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है वो पास्ट, बहुत पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है. सपोज आपका एक दोस्त एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, और वो जो बिल्डिंग बना रहा है ना वो 10 महीने से शुरू है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ. तो आप क्या बोल सकते हो, माय फ्रेंड हैज बीन डूइंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर 10 मंथ, यानी कि 10 महीने पहले वो काम शुरू हो गया लेकिन अभी तक वो चल रहा है. Now we will go to the next part, that is called as the past simple, the contrary of present simple. Okay, we use past simple for the past action. जो एक्शन हमने पास्ट में किया उसे हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे. I went to college, I played football, I ate chicken biryani, like this. Number 1 बहुत सिंपल है. Number 2, we use the past simple for the past habit. अभी थोड़ा मजा आएगा. जो प्रेजेंट सिंपल का बात था वो प्रेजेंट हैबिट को डिनोट करता था. अभी जो पास्ट सिंपल आ गया, अभी वो जो पास्ट हैबिट को डिनोट करेगा. अभी आप 25 साल के हो, तो जब आप छोटे बच्चे थे आप कार्टून देखते थे तो ये आपका हैबिट हो गया. अभी आप कार्टून नहीं देखते हो क्योंकि अभी आप बड़े बन गए हो. तो यहाँ पे जो कार्टून देखना वो आपका पास्ट हैबिट था, अभी नहीं है. तो वैसे ही जो पास्ट हैबिट था उसको हम यूज करने के लिए और उसको डिनोट करने के लिए पास्ट सिंपल यूज करेंगे. तो क्या बोल सकते हो, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून. ओके, आई यूज्ड टू प्ले कार्ड गेम्स. I used to play Ludo when I was a child. मैं जब बच्चा था मैं कार्टून देखता था. तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल. नंबर 1, जो भी आपके पास्ट की एक्टिविटी खत्म हो चुकी है उसको यूज करने के लिए आप पास्ट सिंपल यूज करना. एंड सेकेंड, अगर आपकी कोई भी पास्ट की आदत है, हैबिट है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी आप पास्ट सिंपल को यूज करना. Now we go to the past perfect. Here remember, whenever two past actions is done simultaneously, then we use the past perfect for those action which took place earlier. Suppose आपका 2 एक्शन है and both of them are past, यानी कि 2 एक्टिविटी और एक्शन पास्ट में शुरू होता है लेकिन दोनों एक्टिविटी में से जो एक्टिविटी जल्दी शुरू हो गया उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. तो जब मैं स्टेशन में पहुंचा ट्रेन चला गया था. स्टेशन में पहुंचा एक एक्टिविटी है जो कि पास्ट में हुआ, ट्रेन चला गया और एक एक्टिविटी है जो भी पास्ट में हुआ. लेकिन दोनों एक्टिविटी में से पहला कौन सा हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा ये पहले हुआ या ट्रेन चला गया वो पहले हुआ. ट्रेन चला गया ये पहले हुआ. इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. दूसरा, अगर कोई आपसे मिलने आया है और तभी आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो बोल सकते हो दैट आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन ही केम टू माई होम. तो यहाँ पे वो घर आया, ये एक एक्टिविटी है. आपका होमवर्क करना 2 एक्टिविटी है और दोनों ही पास्ट में हुआ था लेकिन वो आने से पहले आपने अपना होमवर्क कर दिया तो आपका काम पहले हुआ. तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हो. तो क्या बोलते हो, दैट आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन ही केम टू माई होम. ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट. नाउ वी विल गो टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. We use
past perfect progressive for those action which took place from the past and still it is running and there is a chance that it will run in future. ठीक है, एक एक्टिविटी जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में मैं 1995 से रहता हूँ, वो मेरा घर है. तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? दैट I had been living in that building since 1990, यानी कि 1990 से मैं वहाँ पे रहता आ रहा हूँ. मैं रहता था पास्ट में, अभी भी हूँ और ये मेरा घर है. दैट मीन्स इन फ्यूचर में भी मैं वहाँ रह सकता हूँ. तो एक एक्टिविटी जो कि पास्ट में बिगिन हुआ, अभी तक चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा. नाउ we will go to the future part. Number 1, future simple. Very simple. We use future simple for those actions we do in future. जो भी एक्टिविटी हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल सकता हूँ दैट टुमारो आई शैल गो टू कॉलेज. टुमारो आई शैल जॉइन माई फ्रेंड. तो ये जो एक्टिविटी है मैं कब करूंगा? फ्यूचर में करूंगा. इसके लिए मैं यहाँ पे फ्यूचर सिंपल यूज किया. नंबर 2, फ्यूचर प्रोग्रेसिव. ये फ्यूचर सिंपल से थोड़ा मिलता जुलता है. याद रखना, वी विल यूज फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर दैट एक्शन व्हिच वी डू इन ए पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. अगर फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम में हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम वहां पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज करेंगे. तो मैं अगर बोलूंगा कि मैं टुमारो मेरे दोस्त को ज्वाइन करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं आई शैल जॉइन माय फ्रेंड टुमारो. लेकिन कल कितने बजे? अगर टुमारो मॉर्निंग में ज्वाइन करना होगा तो मैं ये चेंज कर दूंगा. मैं क्या लिखूंगा? दैट आई शैल बी जॉइनिंग माय फ्रेंड टुमारो मॉर्निंग. अगर मैं स्पेशली टुमारो लिखूंगा तो मैं फ्यूचर सिंपल यूज करूंगा. मैं बोल सकता हूं आई शैल जॉइन माय फ्रेंड टुमारो. लेकिन टुमारो कब? एक पर्टिकुलर टाइम. मॉर्निंग हो गया तो मैं चेंज कर दूंगा. क्या? आई शैल बी जॉइनिंग माय फ्रेंड टुमारो मॉर्निंग. ठीक है, ये हो गया. और मैं बोल सकता हूं कॉलेज जाना. अगर मुझे सिंपल कल कॉलेज जाना है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो. मतलब कब जाना है? आफ्टरनून को जाना है. तो फिर चेंज हो गया. आई शैल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो आफ्टरनून. तो अगर पर्टिकुलर टाइम आ गया तो आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो गया. अगर नॉर्मल टाइम है तो फिर आपका फ्यूचर सिंपल हो गया. नाउ वी विल गो टू द फ्यूचर परफेक्ट. वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस for those activity which has completed in future by a particular time. For example, you can say that I shall have done my homework by tomorrow afternoon. ठीक है, अगर आपका कोई काम फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम से पहले खत्म हो गया तो आप वहां पे फ्यूचर परफेक्ट यूज कर सकते हो. नाउ द लास्ट वन, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. We use the future perfect progressive for those activity we started from the past but in future there is a chance that it will done by some time. For example, you can say that by next week we shall have completed my home construction. आपका होम कंस्ट्रक्शन अगर एक साल पहले शुरू हुआ और आप श्योर हो कि अभी 2 वीक में आपका होम कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हो. ठीक है. वेल स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे and I think this class will be beneficial for you, not only for your spoken English but also for your written English. And if you like today's class then kindly like, comment, share and subscribe it. This is Devil bidding you goodbye. Take care.